We are starting with chapter 4, strategic choice. This chapter is divided into two parts. I will say one is your strategic options and your corporate level strategies. दो पार्ट है, मतलब my expectation in the exam is also that there will be one question on the strategies that you are seeing over here, and there will be one question compulsory and definitely from the strategic options wala part. So this chapter is divided into two. I will say corporate level strategy. This used to be chapter number 4. इसमें नया कुछ भी नहीं है. All right. And the other one was strategic options that used to be part of chapter number 2, जो portfolio analysis था. मतलब वही एक्सपीरियंस कर्व, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और ये सब चीजें एक ही साथ सिखाई जाती थी. ठीक है. सो वन क्वेश्चन इज मस्ट फ्रॉम योर ऑप्शंस वाला पार्ट. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद योर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस. आई विल स्टार्ट विद अ सिंपलर वन बिकॉज अभी थोड़ा ब्रेक टाइम वाला हिसाब है. ये सब छोड़ो, अभी अपन आ रहे सीधा बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर. स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस क्या लिखा है? वन क्वेश्चन 100% आएगा इसमें से. सो यू स्टार्ट, गिव द चैप्टर टाइटल, चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, एंड उसके बाद स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस. विल कंटिन्यू. आई विल गो इन अ रिवर्स ऑर्डर दिस टाइम. बोथ पार्ट्स आर इंडिपेंडेंट. इट डजंट मैटर. यू कैन स्टार्ट एनी पार्ट. ओके. नाउ आंसर ऐसा लिखना नहीं, खाली जितना बोल रहा हूं उतना. स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, वन क्वेश्चन 100%. ठीक है. नाउ इन दैट द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज द बीसीजी मैट्रिक्स, Boston Consulting Group. All right, they made this matrix in the year 1980. BCG still survives. It's a consulting firm. It is still there. They have offices in India. It is in Nariman Point. All right, in Mumbai also they have it in Nariman Point. India में multiple locations में है. When companies like Reliance, when companies like Tata, when companies, big companies start facing issues, they go to BCG for advice. भाई हमको नहीं होगा problems, please help us out, give us a fresh look or fresh understanding. You have a job at BCG, you have to either be a graduate from IIM or CA final रैंकर. ये सिर्फ दो प्रोसेस से हायर करते हैं बीसीजी. नाउ इमेजिन यू आर एडवाइजिंग कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा, गोदरेज, आईटीसी, ऑल बिग कंपनीज, handsomely paid, much more than a big four. Are you understanding? But you should either be a graduate from IIM or you should be a CA final ranker. Then you will get a call, not a job. A call. They will call you immediately. CA final rankers को call आता है कि we are offering you a interview. उसमें जाके तुमने कुछ साबित किया, प्रूफ किया, तो तुमको जॉब मिलेगा. रैंक does not guarantee a job. It only guarantees an entry, a call. That's why I tell you, knowledge अभी से ही. Are you understanding? Good company, great companies. या तो तुमने कुछ एक, या तो ये दोनों चीज नहीं है, तो थर्ड, you should have done something very good in your life so that you can get a job in BCG. Very good. मतलब some, you have a startup or you've done some, wacky things, fanatic. ऐसा. ठीक है. Now imagine this company made this for its client and it is top 2 in the world. They made this for their client. And now, as I said, practically की जाती है चीजें and then theoretically सिखाते हैं. 1980s, 1990s के अंदर this model was made for a client and now we are studying it still in 2025. And in every MBA program, BCG matrix is taught. Every. अच्छे से अच्छा, खराब से खराब. It is a part of the syllabus. Alright. Now, sir, why BCG matrix made? The BCG matrix is a 2x2 4-cell matrix that classifies. You have to understand, it was a part of portfolio analysis.
When big companies have multiple products, does every product perform the same? No, sir. So in order to their products, BCG came up with this model. Alright, where they said, listen, we will classify products on the basis, and they gave them names. The classification two axis, बराबर? ये तुम्हारा x axis हो गया, ये y axis है. उल्टा बना हुआ है, समझा ना? इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी. क्लियर हो गया? So this is your x axis, this is your y axis. Now x axis talks about market share. Market share talks about product strength. मतलब the greater market share, the stronger the product is. Market share indicates product strength. Market growth indicates market attractiveness. How attractive is the market? मतलब high growth, high attractiveness. Low growth, you always want to go to a market that's growing, right? If you are in a low growth, it's not attractive. समझ में आ रहा है? So basically ये क्या हो जाएगा? High market, high, low, high and low. समझ में आ रहा है? So high growth, high market share will become a star product. Are you understanding now how to read? A high market growth and a high market share product. So a product that is enjoying a high market share and a high market growth will be a star product. A product that is enjoying low market share but operating in a high market growth is, मतलब इसका फ्यूचर क्या है पता नहीं, अनसर्टन, अपने जैसा, बराबर है? क्वेश्चन मार्क. चल रहा है, कब चालू है, चल रहा है, कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है. And there are cash cows and dogs. Question marks are also known as problem child या wild cats. They are also known as problem child या problem children depending on the number of products या wild cats. ठीक है, इसका नाम है, इसको also बुलाया जाता है. Let's now try to understand. तो सबसे पहले मार्केट शेयर क्या हुआ? What is market share? Product strength. कि प्रोडक्ट में कितना दम है, जबरदस्त प्रोडक्ट ऐसा. एंड मार्केट में कितना दम है, दैट इज मार्केट ग्रोथ, मार्केट अट्रैक्टिवनेस इंडिकेटेड बाय मार्केट ग्रोथ. क्लियर हो गया बेटा ये? चलो ठीक है. अभी हर को यहां तक दे डिडंट स्टॉप. हाँ सर ये तो बहुत सिंपल है. क्या है ना, हाई लो करके 3-4 जानवर डाल दिया लोग ने. यहाँ कैश काउ डाला, यहाँ डॉग डाला, यहाँ वाइल्ड कैट्स डाला, यहाँ पे स्टार डाल दिया. ठीक है, ये नहीं. ये लोग ने बोला हर प्रोडक्ट या हर क्वाड्रेंट के देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक हाउ वी सॉ इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एवरी स्टेज हैड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो हियर दे सेड एवरी क्वाड्रेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दोस कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अभी we will do BCG analysis of a company called as Nestle. ओके, तो हम लोग प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि क्या करना. ठीक है, आवर फेवरेट वेबसाइट Amazon. ऑलराइट, आवर फेवरेट प्रोडक्ट कॉफी. क्या है, व्हाट इज कैफे? कौन जो कितने कॉफी पीते इधर? कौन सा कॉफी पीते हो? अरे ब्रांड बेटा, ब्लैक कॉफी. कौन सा टाइप नहीं पूछा, यही टाटा वाला डेविडॉफ. और कौन है ये अमीर पार्टी? इसका एक इंस्टॉलमेंट बढ़ाना पड़ेगा लगता है. ठीक है, दे देगा ना एक. अभी डेविडॉफ कॉफी पी रहा है तो क्या है? नेस्कैफे दे. अच्छा है, सही सही बोलो, दिल पे हाथ रख के. नेस्कैफे बॉस. ब्रू इज स्पेसिफिक. थोड़े लोग ब्रू पीते, मेजॉरिटी नेस्कैफे पीते. घर में हमारे पास नेस्कैफे का एक बॉटल रहता ही है. मेहमान लोग आया तो उनको पिला, हम पिए या ना पिए, बट एक नेस्कैफे का छोटा बॉटल, बड़ा बॉटल, 2 रुपए का सैशे, यस रहता ही है नेस्कैफे. यस और नो? नाउ नेस्कैफे के एडवर्टाइजमेंट्स इफ यू रिमेंबर, ऑलराइट, गर्मी में भी ऐड करते हैं, ठंडी में भी ऐड करते हैं. गर्मी में क्या ऐड करते हैं?
नेस कैफे एडवर्टाइजमेंट, वो दीपिका पादुकोण को ले लेते हैं, बोलते चलो कोल्ड कॉफी बना, ठीक है। अभी दीपिका पादुकोण बना रही है तो स्पेशल ही होगा, करेक्ट। नहीं, इसमें दीपिका नहीं है, आई थिंक मूड खराब हो गया। कोई और क्या ये? मुझे नहीं मालूम यार, ठीक है। आई 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 करण जौहर जूना ऐड है, हाँ हाँ। ठीक है, इस क्यों नहीं पिएगा कॉफी इंसान, ठीक है, सब जगह कॉफी पिएगा, व्हाई नॉट, ठीक है। पॉइंट सी ड्यूरिंग ये खर्चा होता है बॉस, ये सब करने को जरा, है ना ना। ड्यूरिंग से ये लो रेड मग लो, ये नेस्कैफे पाउडर लो, आप कोने में बैठो कॉफी पियो, ठीक है। गर्मी में ये सब करने का, ठीक है। ऑलराइट, शेकर देगा साथ में फ्री, बर्फ बर्फ डालो, कॉफी डोलो, ऐसा शेक करके पी लेने का कॉफी। पॉइंट इज लिसन, फॉर अ स्टार प्रोडक्ट टू रिमेन अ स्टार प्रोडक्ट, हेवी एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड। दे टुक सो मेनी स्टार्स, पैसा लगता है बॉस, फ्री में कोई नहीं करता ये सब। And stars which were great stars at that time. Are you understanding? So coffee मतलब Nescafe in order to maintain, see it's operating in a market, सबसे पहले it's operating in a market that is attractive, it is growing. So that's what so many brands are there. Now connected with high growth, more you remember the competition, but there are enough space for, बता भाई हम भी कॉफी बेचेगा, हम भी बेचेगा, हम भी बेचेगा। ब्रू आ गया, टाटा आ गया, डेविडॉफ आ गया, रेज आ गया, कंट्री बीन, वो सब मैंने दिखाया था तुमको। सो कंफ्यूज खरीदे, सो मेनी ब्रांड, सो मेनी वेरिएंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट्स एन हाई मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर एज ऑफ नेस्कैफे, एज ऑफ नाउ। सो दे हैव टू else will take over. Same with मैगी। अब मैगी ना ऐसा, मैगी एक्चुअली यहां आ रहा था। So transition is always take your question marks, build into stars and then convert them into cash cows. Question mark मेहनत नहीं किया, question mark यहां भी लुढ़क सकता है, इधर भी आ सकता है, because their future is uncertain. If you do the right strategy, it will become a star product. If you do the wrong strategy, it will become dog. Now Maggie was transitioning to a cash cow, but it has come back to star question mark. Still say it's a star product, but if they do something properly, it can become question mark. Why? रामेन, पहले मैगी बिकता था बॉस, खाली ऐसे ही बिकता था, अपने नाम पे बिकता था, कुछ करने का जरूरत है, स्टार प्रोडक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नो, इनफैक्ट आई से कुछ करने का जरूरत नहीं है, बिकता है बस अपने आप। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, पहले स्टार समझ गया, लाइक नेस्कैफे, a star product which is sold, but star products require heavy investment or expenditure. A star product is a popular product but not profitable product because fight अभी भी चालू है। It generates enough, जितना नेस्कैफे छोटा मोटा प्रॉफिट, पॉपुलर है, प्रॉफिटेबल इतना नहीं है। समझ में आ रहा है? ये दो चीजें क्लियर हो गई।
Now, next product of Nestle that I want to talk about over here is KitKat. सबको पसंद है KitKat का कंपटीशन? बोलो जरा. पर्क और बोला ये सब बॉटल पे. कौन बोला पर्क? कौन बोला पर्क? कुछ तो इज्जत करो KitKat की यार. कम ऑन. मंच भी नहीं यार. मंच KitKat का कंपटीशन ही नहीं है बॉस. ऑलराइट, KitKat का कंपटीशन ही नहीं है. किट को कुछ करने का जरूरत है? KitKat को बस बैठा में मस्त. हाँ है ना. 5 रुपए वाला, 100 सब अलग अलग वैरायटी के KitKat है. कोई टेंशन नहीं. कभी कभार एक ऐड कर देता है. टेक अ ब्रेक, टेक अ किट. क्या हैव अ ब्रेक, हैव अ KitKat. बराबर. कभी कभार, ओकेजनल. जस्ट याद के लिए कि वी आर देयर इन द मार्केट. इट डजंट नीड टू डू एग्रेसिव प्रमोशन. इट इज अ कैश काउ. सी, इट्स ऑपरेटिंग इन अ लो मार्केट ग्रोथ विद हाई मार्केट शेयर. कोई कंपटीशन ही नहीं है, कुछ कहीं जाना नहीं है. बस यहां पे शॉर्ट टर्म रहता है. स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म. जितना पैसा शॉर्ट टर्म कैश फ्लो तुम निकाल सकते हो ना, उतना निकालो. सो योर स्ट्रैटेजी इज टू हार्वेस्ट कैश काउज. हार्वेस्ट मतलब जितना कैश फ्लो बिकॉज ये कब डिक्लाइन पे चला. सो बिफोर ट्रांजिशन और जितना कैश निकाल सकते हो सपोज टू मेक टू द. समझ में आ रहा है? बस उसमें से मैक्सिमम कैश फ्लो जनरेट करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? KitKat तक समझ गया? सी, KitKat इज ऑपरेटिंग इन अ लो मार्केट ग्रोथ विद हाई मार्केट शेयर. क्लियर हो गया? ऑलराइट, सो वी आर डन. तो नेस्ले, मैगी ऑल्सो, बट नाउ मैगी स्विच काउंट. नाउ मैगी इज गोइंग रिवर्स. इट वॉज अ कैश काउ. बिकता था यार, बस मैगी ही था. नूडल्स मतलब क्या? मैगी. अब नूडल्स मतलब मैगी है क्या? अभी नूडल्स डालो तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे. इंस्टेंट नूडल्स. बराबर है. नो मैदा. फिर ये कोई नया ब्रांड है, नो मैदा, नो MSG. सैड है बेसिकली, मतलब कुछ है ही नहीं उसमें. ऑलराइट, चिंग्स, येपी. आ रहा है ना ये सब. कोरियन आएगा इससे. ठीक है. विकेट गुड, येपी है. ये आ गए ना ये लोग. शिन रामियन, राइट? नाउ दीज लाइक इन साइज. मतलब एक खाएगा तो तुम्हारा मतलब डिनर लंच एक मील हो जाता है. ठीक है. अगेन एज आई सेड, कल्चरल एनवायरमेंट्स आर चेंजिंग. ये कोरियन रामेन आ गया इधर. ऑलरेडी ये आ गया है. वाई वाई आ गया ना. बहुत बेटा. ये इंडोमी करके है, ये आ गया है. बोलेंगे सर 920 में 40 पैकेट, रफली वही प्राइस हो जाता है. 2 यम क्या 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 आ गया है बेटा. अभी तो रामेन आ गया है. समझ रहे हो? बिकॉज ऑफ चेंज इन योर इन्वायरमेंट. समझ में आ रहा है? लोग हेल्थ है, मैदा नहीं खाना, ये नहीं खाना. ये क्या है? के बॉम्ब, के ड्रामा, के बॉम्ब, सब चीज यही हो गया. अभी कप नूडल्स आ गए हैं. ये कोका वेज भी आता है बेटा, टेंशन नहीं लेने का. ठीक है. समझ में आ रहा है? सो द पॉइंट इज बिकॉज द मार्केट डायनामिक्स हैव चेंज्ड. नेस्ले को नाउ इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट स्टेटस. पीपल एंड देखो इतने सालों तक. नाउ सी, अंडरस्टैंड नाउ, दिस बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. नेस्ले वुड हैव गॉन फॉर कॉस्ट लीडरशिप बिकॉज इट इज सेलिंग अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. एंड कॉस्ट लीडरशिप का एक डिसएडवांटेज ये था कि इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन R&D इट कैन प्रूव रिस्की इन द लॉन्ग टर्म. करेक्ट? नाउ व्हाट हैपेंड इज Nestle for so
years did not give us flavors. दो फ्लेवर चलाता था, मैजिक मसाला या क्या नाम है, इंडियन मसाला या क्लासिक मसाला फ्लेवर एंड चिकन फ्लेवर. नेस्ले हैड, बट चिकन फ्लेवर वॉज वेरी रेयरली अवेलेबल. इंडिया में मिलता था बहुत कम जगहों पे. पॉपुलर वॉज मसाला. क्लियर है ना? Nestle doesn't know how to come up with new flavors. Coming up with new noodles or new flavor is a task. Because flavor कंट्री को चाहिए ना यार. अब इतने सालों तक they did not develop their product, they did not change, they did not invest in R&D. Now suddenly you have companies that are selling you different kinds of flavors that you can't even imagine. Are you understanding? Cheese flavor, spicy flavor, 3x, 2x, अलग अलग सब चीजें चल रहा है. And Maggi is responding, but उनका कोई भी फ्लेवर चल नहीं रहा. It's not having the impact that they are supposed to. Maggi भी कोरियन फ्लेवर चालू किया है. सफारी किधर है? Maggi has started. Maggi कोरियन आया ना, कोरियन बारबेक्यू वेज, बारबेक्यू चिकन. रेटिंग्स देखो पर. इट्स नॉट मेकिंग दैट इम्पैक्ट बिकॉज इट कॉस्ट लीडरशिप पे गया ना यार. डिड नॉट गिव फ्लेवर्स. कोई भी इनका फ्लेवर चल नहीं रहा. सी कोरियन 3 stars. The younger is not preferring Maggi. Younger matlab the ones coming after you, the ones who are in school now. Are you understanding? Younger बोला ना, relative. तुमको बुड्ढा थोड़ी ना बोला मैंने. Younger, the ones in school, they are not having Maggi. You think they are eating Maggi? No. I think you generation of Maggi eaters. Because they are like, नहीं हमको Maggi नहीं खाना, हमको ramen खाना है. And once they are used to that flavors, trust me, then Maggi seems bland. ऐसा लगता है कुछ फ्लेवर ही नहीं है. Because जब when we Maggi, this was the only so we found it damn good. कॉस्ट लीडरशिप पे गया, पैसे कमाया, अब आ गए फ्लेवर्स लेके. When you try other flavors and other brands, Maggi seems very bland. To which response they have come up with different flavors. They're not able to crack that formula. यार ऐसा फ्लेवर people should come back. नहीं हो रहा. समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? कैश काउ. Your ultimate target is to become a cash cow. You will struggle. That's why question mark to start cash cow. That is your ultimate journey. Because star has to be converted to cash cow. How long? You will have to survive and then eventually become cash cow. ठीक है? All right. चलो, we'll take a small break and continue the other quadrants after the car.
X axis. Y-axis denotes market growth, which measures market attractiveness. हाँ बोलो. एक्सेस बेटा तक क्लियर तो लिखा हुआ है. स्टार. क्या एसटी हमेशा स्ट्रैटेजी रहता है बेटा, हमेशा.
और कोई मीनिंग मिला एसटी का तुमको मेरे क्लास में? इंक्रीज, बिल्ड, मार्केट शेयर के पीछे एरो, एरो के पीछे बिल्ड, बिल्ड के पीछे स्ट्रेटेजी, उसके आगे फॉरगो। किसका? ज्यादा मेरे साथ लिखो बॉस, अभी क्या है? लो ग्रोथ है मार्केट शेयर। क्या इन्वेस्ट कर रहे तुम लोग यार? लेस इन्वेस्टमेंट। चलो हो गया। The next quadrant that we are going to see is question mark. ठीक है, ध्यान दो जरा इधर। What does question mark say? अच्छा हाँ, एक को क्या चाहिए था इधर? हाँ, बिल्ड इंक्रीज। अभी स्ट्रैटेजी क्या है? द स्ट्रैटेजी इज टू बिल्ड ऑन स्टार्स। बिल्ड ऑन स्टार्स मतलब आप अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज करते जाओ। ऑल राइट, फॉर गुड अर्निंग्स, मीनिंग हियर यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म भी इफ यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, even if you're not short term, let it for good, you will eventually become a cash cow. That is when you will recover. Are you understanding? तो एग्जाम्पल मतलब वो इनेस कैफे, मैगी, ऑलराइट, अभी खर्चा करो फ्लेवर। जैसे मैगी हैज टू डेवलप फ्लेवर्स, स्पेंड मनी, डू मार्केटिंग, डू प्रमोशंस, डू एवरीथिंग। तुम शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में मत सोचो अभी। Establish yourself in the market, survive the competition, and then eventually you will become a cash cow. Today, Zepto and Swiggy are both in the star quadrant and they are aggressively spending. Discounts पे discounts दे कि एक जन survive कर लेगा, and then eventually will become a cash cow. Clear है?
इन्वेस्टमेंट, कम ही रहेगा. हाँ, but it's earning na, it's giving you returns in a low growth this thing, but you have the highest market share na, you're sort of the market leader. ठीक है. Now question mark के अंदर, when we come to question mark, again we'll come to Nestle. Now what does question mark indicate? Pay attention. Your market share is low, meaning your product is weak. When I am saying if I put some product in question mark, your market share is low, meaning your product is weak. That's the reason the market share is low. Yes or no? But the market is attractive, meaning it is an opportunity. It's a favorable market condition. It's good growth, attractive market. But for some reason, your product is not performing up to the mark. ऐसा कोई प्रोडक्ट सोच सकते हो नेस्ले का? नेस्ले का मिल्क चॉकलेट खाया? कितने लोग बोल रहे हैं क्या है सर नेस्ले मिल्क चॉकलेट? मैंने क्या, नेस्ले मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट नहीं. इतना एक्साइट क्यों हो जाते हो तुम लोग मिल्की बार देख के? ठीक है, नेस्ले मिल्क चॉकलेट कितने का है? 10 रुपए का है सर. खाया है? किसी ने भी खाया है इधर? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन खाया है? अच्छा लगता है आपको? डेयरी मिल्क टाइप ही है, थोड़ा टेस्ट अलग है, पर मजा आया खा के? नहीं ना, तो बस आज सुना. एग्जैक्टली समझ में क्या है? इसके लिए मार्केट शेयर कम है ना, मार्केट में चॉकलेट्स इज ग्रो, so many variants are coming, so many brands are coming. Now Nestle, you established, you brand value, but for some reason selling. Understood? तो इसका सर ये अच्छा प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकता है. इट कैन रीच और कैन स्टार्ट कंपीटिंग विद देम. ये एक ही वेरिएंट बेचता है 10 रुपए वाला, बस और कुछ बेचता ही नहीं है. वाई? वी डोंट नो. उनका इंटरनल पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, वी डोंट नो. सी, इट्स अ ह्यूज बिजनेस. उनको एक जगह कोई लॉस हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी. बट एट द मोमेंट नेस्ले का मिल्क चॉकलेट इज अ क्वेश्चन मार्क. वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर विल बी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट कैन बिकम अ स्टार प्रोडक्ट ऑल्सो, इट कैन बिकम अ डॉग प्रोडक्ट ऑल्सो. सो क्वेश्चन मार्क. You improve you improve your product, make it better, change the formula, do marketing, try to improve your product. किसी ने, आपने बोला डेयरी मिल्क जैसा है, बट सर इतना मजा नहीं आया. ठीक है, बराबर है, जेन्युइन फीडबैक अच्छा होता, तुमको पता रहता ना यार, तुम कंज्यूमर हो, चॉकलेट खाने वाले हो. ऐसा भी नहीं कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, इट इज एट द सेम रेंज. तो मे बी इनका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, मार्केट प्रेजेंस बराबर नहीं. इट इज सो एस्टॉनिशिंग इन अ क्लास ऑफ ऑलमोस्ट 70 पीपल, ओनली वन नोज. तो हो गया ना, प्रूव. क्वेश्चन मार्क है सर. ऐसा भी नहीं कि इंपोर्टेड है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड है. क्वेश्चन मार्क. नाउ गया गुजरा सर, प्रोडक्ट भी खराब, मार्केट शेयर भी लो. क्या लगता है? नेस्ले का ही होगा ना बेटा, पोर्टफोलियो कर रहे हैं. हो ही नहीं सकता. सॉरी टू से.
सर बचपन खराब कर दोगे सर, आज तो कर ही डालेंगे, ठीक है। नाउ वेट, एनालाइज व्हाई हैव आई पुट मिल्की बार इन अ डॉग कैटेगरी वाला प्रोडक्ट। जस्ट बिकॉज तुम खाते हो तो क्या प्रोडक्ट डॉग कैटेगरी का नहीं होएगा क्या? कुछ भी तुम खाते हो, अरे रेटिंग का अचार डालने का है, क्या करना है? ठीक है, अभी एक मिनट, सबसे पहले व्हाट इज मिल्की बार अकॉर्डिंग टू यू? विल स्लोली प्रूव इट। व्हाट? दूध का व्हाइट चॉकलेट, ठीक है, ये भ्रम तुम्हारा पहले तोड़ेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट चॉकलेट ना, अच्छा, what did you say? White chocolate, right? Where in the box it says white chocolate? I got it. ये दिख रहा है इधर? हाँ, इसको दिख गया। It is written milk-based confectionery. It is not white chocolate. सबसे पहली बात, इट इज मिल्क बेस्ड कन्फेक्शनरी, मतलब दूध बेस्ड मीठा। दूध का एंड व्हाइट चॉकलेट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ऑलराइट, तो तुम्हारा एक बचपन का जो भ्रम था वो टूट गया कि तुम व्हाइट चॉकलेट खाता था, ठीक है। कुछ नहीं, तुम व्हाइट चॉकलेट नहीं खाता था, तुम कुछ तो खाता था जो व्हाइट चॉकलेट नहीं है, ठीक है। Now, if you look at the ingredients, milk solids, not white chocolate. दूध का पाउडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद शुगर है, सबसे सेकंड मोस्ट ज्यादा इंग्रेडिएंट। इट इज ऑलवेज इन द ऑर्डर ऑफ देयर व्हाट डू वी से, क्वांटिटी, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, ज्यादा से कम, करेक्ट। हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट्स, दैट इज ऑयल। इट्स बेसिकली ऑयल का दूसरा नाम, ठीक है। ऑल राइट, तो सर कुछ तो खाया हमने, मिल्क बेस्ड कॉन्फेक्शनरी। ऑल राइट, नाउ अब सर आपने क्यों डाला, व्हाट इज द अदर थिंग? नाउ it is operating in a unit which is called as white chocolate, correct? People are eating it in, last कब खाया था मिल्की बार? एक मिनट, आराम आराम से, सालों पहले। अभी किसी ने बोला परसों, किसने बोला? हाँ, उससे पहले कब खाया था, है ना। अभी सी मिल्की बार से वी हैव अ नॉस्टैल्जिक कनेक्शन विच आई विल नॉट डिनाई। तुम बोला बचपन, अभी कभी कभी ने कभी मन किया तो खा लिया, वरना यू डोंट परचेज मिल्की बार एनी मोर। यस, अगेन देयर मस्ट बी सम किड्स ओवर हियर हु वुड जेन्युइनली ईट मिल्की बार ऑन अ डेली बेसिस, ऑल्टरनेट बेसिस, बट इन जनरल। नाउ लेट्स लुक एट, दिस इज नॉट व्हाइट चॉकलेट, देन व्हाट इज व्हाइट चॉकलेट? बेटा व्हाइट चॉकलेट इज अ नीश मार्केट, इट इज एक्सपेंसिव एंड इंडिया में नहीं प्रेफर करते व्हाइट चॉकलेट। क्या हुआ? तो मिल्की बार आने से क्या है, बट वो है नहीं ना व्हाइट चॉकलेट। कंपाउंड इज डिफरेंट बेटा। ये व्हाइट चॉकलेट है, यस, लिखा है ना इसने, क्योंकि डालता है चॉकलेट। इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेटा, हाँ, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। ये तो इंपोर्टेड भी है ऊपर से, अपने को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज बेटा, लिसन लिसन लिसन, द पॉइंट इज
90 gram for 400 rupees. Are you understanding? White chocolate is an expensive product in general. महंगा आता है. जो चॉकलेट आपको मिलेगा ना इंडिया में महंगा ही आएगा. ठीक है, यू टेक एनीथिंग. ये व्हाइट चॉकलेट नहीं है, ठीक है, वो व्हाइट चॉकलेट नहीं है बेटा. एनीवे लिंट का आता है, व्हाइट चॉकलेट लिंट का आएगा. ये देखो 400 रुपया 100 ग्राम. सो केजी कितना हो गया? It is expensive. In general, it is expensive. And there are very few players or few people who genuinely like white chocolate. India में they'll either prefer a milk chocolate or dark chocolate. White chocolate बहुत कम लोग खाते हैं. इसके लिए there are no white chocolate sellers. कोई कैडबरी क्यों नहीं बनाता है ही नहीं उतना मार्केट. कैडबरी मास प्रोड्यूसर है, व्हाइट चॉकलेट इतना मास प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि उतना मार्केट ही नहीं है. यानी बहुत जल्दी पिघल भी जाता है. इट्स मोर सेंसिटिव देन योर नॉर्मल चॉकलेट. आप जेब में पिघल ही जाएगा या हाथ में पकड़ोगे पिघल जाता है. इट्स दैट सेंसिटिव टू हीट. सो द मार्केट इज वेरी लेस. सो इट्स ऑपरेटिंग एनीवे. एंड आपका इट्स अ मिल्क बेस्ड कन्फेक्शन. जैसे क्रीम, यू नो दैट. हाँ, क्रीम क्या फैमिली पैक खाते हो ना, शेमलेस वेनिला. क्या लिखा? सबसे and one more, it doesn't say ice cream box. वो बोलता है आइसक्रीम है. It doesn't say ice cream boss. It doesn't say. ये आइसक्रीम है ना, तो उसने बोला स्लो आइसक्रीम. ये अलग कैटेगरी है इनका. वनीला नहीं है बॉस. वनीला इज शेमलेस. स्लो चर्न प्रोडक्ट कहाँ है इसका? नहीं, आई थिंक आउट ऑफ स्टॉक या वगैरह. अदरवाइज दिस इज नॉट आइसक्रीम बेटा. मेरे को क्या मजा आएगा तुमको तुम्हारी खुशियां लेके. ठीक है, look at the ingredients. It's not classified to be called as ice cream beta. Out of stock है बेटा, out of stock. Cornetto mostly. See, you're not understanding. Creamy butterscotch ice cream. ये बचपन से दो हमारे साथ, ठीक है. हाँ हाँ, सी लिसन, लिख क्यों नहीं रहे इतना इंग्रेडिएंट. आइसक्रीम क्या है? ठंडा आइस एंड क्रीम मतलब मिल्क. When you are not putting milk in it, how can you call it ice cream? It's called cheating the consumer. Are you understanding? Ice cream बोलने के लिए क्रीम मिल्क कंटेंट जाना चाहिए. ये लोग नहीं, अमूल तो अमूल लिखता है आइसक्रीम प्रॉपरली. हैव मोर, अमूल, ये सब ब्रांड्स डालते, ये सब आइसक्रीम बराबर से लिखते हैं. आइसक्रीम में तो द then some milk solids, not even cream. So they are saying frozen dessert. एकदम छोटा सा लिखते हैं नीचे. अब एक एवरेज कंज्यूमर who's not, अगर तुम ही देखो इंटर में आके इतना अक्कल नहीं है कि जो खा रहा है वो
कि क्या पढ़ना पड़ता है बेटा इतना, ठीक है। अमूल तुम क्या बोलो ना बेटा, कौन सा आइसक्रीम देखना है तुमको? पहला वहां वाटर था, समझ में आ रहा है? वहां पे वाटर था। इसके लिए लिखते ना रियल मिल्क, रियल आइसक्रीम। स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, कर दो, मेल कर दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमूल इज आइसक्रीम बेटा, लिखा हुआ है लोग आइसक्रीम, मिल्क सॉलिड्स, नेचुरल इज ऑल्सो आइसक्रीम, ठीक है। बोल रहा हूँ हाँ एक चीज तो नहीं तो ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड डॉग प्रोडक्ट, नाउ यू अंडरस्टैंड लो मार्केट ग्रोथ, लो मार्केट शेयर, यू आर ऑपरेटिंग इन एन इंडस्ट्री, तो हियर इट्स मोस्टली टू लिक्विडेट। अभी जैसे नेस्ले सेरेलैक है बेटा, सेरेलैक इज लाइक अ कैश काउ, कुछ करने का जरूरत नहीं है। सेरेलैक किसके लिए? बेबी फूड, established है नेस्ले। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू हैव मल्टीपल कैश काउज, यू हैव मल्टीपल स्टार्स, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन मार्क है, एंड मल्टीपल डॉग्स ऑल्सो। बट अभी डॉग, नाउ द चांस हैज कम और द टाइम हैज कम दैट यू हैव टू liquidate, find a better opportunity or find some better opportunity. All right, now you will ask me, sir, then why is Milky Bar still operating? Let it operate, it's a huge conglomerate. The point here is you need to understand what is happening. Now Nestle के लिए देश में कम है बच्चे, जैसा तुम आगे भी बनेंगे ना यार, एंड फ्यूचर होगा तो बंद कर देंगे। बट करंटली द पॉइंट इज दे आर अवेयर ना कि भाई ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट है, यहां मैं ज्यादा फोकस करूंगा, इसको चलाओ जैसा चलता है, लेट मी यूज द मनी ओवर हियर। नाउ कैश काउ से पैसा आता है, वो डॉग क्वेश्चन मार्क को सपोर्ट करता है ना, इसके लिए शॉर्ट टर्म कैश फ्लो इंक्रीज करना है, स्टार्ट टू सस्टेन कि ठीक है, spend also, do heavy advertisements, aggressive promotion activities, all right, cash का no need to spend, I earn quite enough, I earn enough कि पूरी कंपनी में ही चला रहा हूं, इसके लिए कैश का, एंड यहां से जो कैश sometimes it is done to help question marks, या it goes to sustain dogs। समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया? with this we are done with BCG matrix। हाँ सी एक्चुअली क्या हुआ ना, आई टेल यू द रियलिटी ऑफ इट। पहले ये कुछ भी बोल के चले जाते थे, नाउ व्हाट हैपेंड, बिकॉज नाउ द मार्केट्स वर नॉट सो एडवांस्ड। मिल्की बार एट वन पॉइंट वॉज कॉल्ड व्हाइट चॉकलेट, बट देन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया रूल्स केम आउट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स केम आउट, दे सेड नो दिस इज चीटिंग, सो यू हैव टू नॉट क्लेम थिंग्स दैट यू आर नॉट गिविंग। तो लोग ने चेंज करके मिल्क बेस्ड कन्फेक्शनरी, फ्रोजन डेजर्ट, नहीं तो आइसक्रीम के नाम पे ही बिकते थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब जैसे रास्ते पे कुल्फी मिलती है, तुमको क्या मालूम अंदर क्या है? तुम तो कुल्फी के नाम पे ही खा रहे हैं ना, कि ये भी रास्ते के स्लाइस, क्या मालूम मुझे तो है। ऑलराइट, मलाई कुल्फी में वो क्रीमी जो फ्लेवर या वो टेक्सचर आता है ना, इट इज बेसिकली प्योरिफाइड, मतलब वो मैश्ड ब्रेड, ब्रेड का पेस्ट जैसा होता है ना, आटा टाइप ब्रेड बना के मलाई फ्लेवर, और तुम खाता है मस्त खच 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 खच, ठीक है, वो लाल टेक्सचर, ठीक है। राइट डाउन, it's actually honestly speaking everywhere, it's not that some are better than the others, everywhere it is all milawat wala scene, because I was in the industry, I know it's the best is
एट होम खाना छोड़, बाहर डेफिनेटली छोड़ दो. बाहर खाना शुड बी लाइक ओकेजनली, सम once in a month. Honestly, once in a month. Otherwise, हाँ. स्मार्टफोन ना, मैं तो डॉग दूंगा. नहीं, सॉरी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, इट्स अ हाई ग्रोथ मार्केट ना, क्वेश्चन मार्क, सॉरी. मेरे पास उतना डेटा नहीं है टू क्लासिफाई, बिकॉज बोथ आर करंटली आई थिंक कंपीटिंग विद ईच अदर. जोमैटो, also known as problem child, also known as problem child or wildcats. क्या डॉग बेचारा. They require a lot of cash to hold their market share. बेटा ये लास्ट दो अटेम्प्ट से आ गया. मैं तुमको बोल रहा था ना BCG मैट्रिक्स. It was tested in September. It was tested in Jan also. Cash बेटा, lot of cash to hold their market share. हाँ, if left unattended, they can turn into क्या, dogs. They have the potential to turn into stars. ठीक है. एक मिनट बेटा, हियर आई मेड अ मिस्टेक. सिर्फ सिर्फ नाम चेंज करो, इसको होल्ड करो. होल्ड, हार्वेस्ट, हियर बिल्ड. खाली नाम में मैंने वो कर दिया, बिल्ड. यहां पे होल्ड, हियर यू राइट डाउन प्रिजर्व मार्केट शेयर. ये ब्रेक से पहले था ना, जस्ट राइट डाउन प्रिजर्व मार्केट शेयर. प्रिजर्व मार्केट शेयर स्टार में. हाँ पूरा पूरा बेटा. हाँ तो मैंने क्यों काला लाइन ऐसे टाइम पास के लिए बनाया है, पूरा कट करना है. होल्ड में प्रिजर्व मार्केट शेयर, बिल्ड में सेम चीज, इंक्रीज मार्केट शेयर. मैंने नीचे का आई मिक्स्ड अप द टू. लास्ट वाला डॉग्स.
low growth, low market share. No future, requires cash to survive. Strategy is to divest. मतलब क्या? Sell or liquidate. With better opportunity costs. ठीक है, हो गया. BCG is done. अब उसके नीचे liquidate, sell or liquidate and utilize your resources ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन हो गया ना बीसीजी. डाइवेस्ट, sell or liquidate and utilize resources with better opportunity cost. क्या ये है ना इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट डाइवेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट मीन द सेम, टू डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है, चलो. BCG is done. Now the next model or the next thing we are going to study is Ansoff product matrix. टाइटल दो. All right, Ansoff product matrix. Now this comes twice in this chapter, so we will study it only once. It comes as a part of internal growth strategies also, and it comes as a part of strategic options also. ठीक है, स्टार्टिंग में रहेगा बेटा. आपको टेक्स्ट बुक में देखना है तो स्टार्टिंग के अंदर. ठीक है. नाउ Ansoff प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ध्यान दो, बंदे का नाम था ईगोर H Ansoff. ठीक है. नाउ Ansoff came up. See, now this is also ग्रोथ स्ट्रैटेजीज. अब यहां पे थोड़ा दिमाग घूमता भी है, इसके लिए फुल फोकस के साथ. ठीक है. नाउ एवरीवन वांट्स ग्रोथ. देयर आर ग्रोथ.
In fact, if you want to see, these are the ways you can get growth. ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ये सब पढ़ना है. Now what teach you is this part. ये देखो intensification दिखा इधर, यहाँ पे I've written down Ansoff product matrix, and then again in your itself it is repeated twice. So we'll study it once. Are you understanding? So I am teaching you a model growth. So समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? Now Igor Ansoff said growth can be achieved in one of 4 ways. अगर आपको ग्रो करना है, अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, प्रॉफिटेबल करना है, सो यू इट इज अगेन जैसा बीसीजी था, इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स. यू हैव आइदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट, जिसको हम क्या बुलाएंगे? मार्केट पेनिट्रेशन. ऑलराइट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट इज कॉल्ड एज मार्केट penetration. Now what happens in a market penetration is, अब जैसे cost leadership type अगर strategy है, now cost leadership was business level strategy I told you. Now the top level has decided that we need to grow first of all. So I'm looking at my product, I'm seeing how will I grow. Can I do differentiation? No. पार्ले जी का पैकेट मेरे सामने रखा हुआ है, मैं क्या डिफरेंशिएशन कर सकता हूं? क्या मैं उसमें कुछ वैल्यू क्रिएशन ज्यादा कर सकता हूं? नहीं. अब मुझे ग्रोथ तो मैं क्या करूंगा? यही प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाऊंगा. और सो आई एम टेकिंग माय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट दैट इज पार्ले जी एंड गोइंग टू माय एग्जिस्टिंग मार्केट. मतलब देखो, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज हो जाता है इसके बाद. ये तो बहुत इजी है फर्स्ट वाला. ऑलराइट, एग्जिस्टिंग मार्केट मतलब सम मार्केट दैट इज नोन टू मी. नाउ आई नो राइट, दीस पीपल ईट पार्ले जी. Now I want to increase my market share. So what do I do? सबसे पहले I do market penetration. Now when I do market penetration, I know I have to do, समझो 1 + 1, 30% extra. So what am I trying to do? I am trying to increase the volume that is used by the existing customer. So my market share is maintained ना? समझ में आ रहा है? तो मार्केट पेनिट्रेशन, आइदर आई एम गिविंग डिस्काउंट्स, आई एम गिविंग 1 + 1 फ्री, आई एम ट्राइंग टू. अब ये 1 + 1 फ्री क्यों देते हैं? टू इंक्रीज द यूजेज बाय द कस्टमर. टू इंक्रीज द यूजेज बाय द कस्टमर. आप महीने में एक पार्ले जी खाते थे या घर में आप 5 पैकेट खरीदते थे. आई वॉन्ट सच अ 7. Are you understanding? 5 + 2 free. Are you understanding? समझ में आ रहा है? तो कुछ तो 30% extra that you are finding usage or you are increasing the volume that is used by the existing market or customers. समझ में आ रहा है? इसको better example of Dettol. What is Dettol used for? What is used for? Dettol बेटा, वो ब्राउन लिक्विड कपड़ों में डालने के लिए. आई थिंक Dettol इज केप्ट इन आवर फर्स्ट एड बॉक्स. गिर के आते हैं, साफ करते, थोड़ा Dettol से लगा देते, खत्म. फर्स्ट ओरिजिनली. देन व्हाट हैपेंड? कोड, एक काम कर बेटा भाई, तू अपने कपड़े भी अभी Dettol में धो दे. Some people would use, मैंने बोल रहा हूं कपड़े धोने के लिए नहीं यूज किया जाता, धोते sometimes when there are babies in the house or you know when कोई someone is sick या someone has to be some immune system weak है, तो yes all this is done. पोछा भी करते हैं Dettol डाल के हॉस्पिटल्स वगैरह में, disinfect. But primary as a market, can I say, it was used to treat wounds वगैरह. पट्टी लगाने से पहले they would just clean it with Dettol, जिसका जो specific requirement है. नाउ बॉस एक काम कर, तू कपड़े भी Dettol से धो दे. तो एक काम कर, शेविंग कर रहा है ना कुछ टू मैन, तो तू जो पानी लेगा ना वो भी थोड़ा Dettol वाला ले. ठीक है, तू एक काम कर, जमीन भी Dettol से पोंछ ले. फ्रॉम द यूज ऑफ ट्रीटिंग वुंड्स इट केम टू फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव यूजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट. इवन सेइंग Dettol कैन बी यूज्ड एज अ माउथवॉश. इट इज रिटन डायरेक्ट नहीं, डाइल्यूट करके, ऑफ कोर्स
डायरेक्ट कुछ भी नहीं डेटॉल यूज करता. इट इज गिवन ऑन. जाना डेटॉल तुम पढ़ते नहीं हो ना, प्रॉब्लम ये है. डेटॉल का पीछे का पैकेट देखना, बोलेगा कैन बी यूज एज अ माउथ वॉश इफ डाइल्यूटेड प्रॉपरली. बड़ा मुंह के कीटाणु भी मर जाएंगे, जमीन के कीटाणु है वो भी मर जाएंगे. तू निगल लेगा तो अंदर भी कुछ है तो खत्म हो जाएगा. ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो the existing product, see in the existing market they are trying to find out alternative uses, they are trying to increase the volume, they are trying to increase the. अब इससे मार्केट शेयर इंक्रीज होता है. आपको समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इजी टू अंडरस्टैंड. इसके लिए मैंने देखो यहां क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आ जाता हूं इधर, ये भी इजी है टू अंडरस्टैंड. व्हेन आई एम टेकिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन न्यू मार्केट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज इट कॉल्ड? मार्केट डेवलपमेंट. I am just adding a new channel or a geographical market. I was selling offline, now I am selling online. Market development. Or I was selling in Maharashtra, now I am selling in Kerala. Market development. I was wholesale, now I am selling retail. Market development. समझ में आ रहा है? एप्पल ने अपना खुद का स्टोर बीकेसी में स्टार्ट किया. मार्केट डेवलपमेंट. इट्स एडिंग न्यू चैनल्स, न्यू मेथड्स, न्यू वेज टू सेल द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. मार्केट डेवलपमेंट. समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है समझने के लिए. सोसाइटी टी पता है आपको? सिर्फ महाराष्ट्र में बिकती है, ये पता है? हाँ, बाहर जाओ. क्यों नहीं? बस क्यों का क्या जवाब है बेटा? क्यों? सोसाइटी टी विच इज सो पॉपुलर इन महाराष्ट्र इज पॉपुलर इन महाराष्ट्र ओनली. व्हेन यू गो स्टेट्स यू विल फाइंड वो गिरनार, ताज, वाघ बकरी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेड लेबल. सोसाइटी इज पॉपुलर ओनली इन महाराष्ट्र. इफ टुमारो society starts selling in different states, it will be called as market development. Growth. It's capturing more sales ultimately by entering into new markets. Tupperware originally was sold by whom? पहले टपरवेयर कैसे खरीदते थे? टपरवेयर का कभी ठेला नहीं रहता था. ठीक है, टपरवेयर महंगा आइटम है. ठीक है, बिल्डिंग में आंटियां आती थी याद, आंटी जो टपरवेयर बेचती है, बराबर है. घर में बच्चा टपरवेयर का डब्बा आ जाना चाहिए. महंगा डब्बा रहता था बॉस. टपरवेयर वर्कड ऑन एन एजेंसी मॉडल वेयर नो फिजिकल स्टोर्स. कोई रेयर इन्वेस्टमेंट. तुम भी टपरवेयर एजेंट बन सकते हो. तुमको बेचने का, टपरवेयर बेचेगा, उस पर कमीशन मिलेगा. तो जितना तुम्हारा सर्कल स्ट्रॉन्ग, आंटीज नो अदर आंटीज, किटी पार्टी होती है और टपरवेयर के डब्बे बेचते, बिक जाते. यस, दैट्स हाउ इट बिकेम सक्सेसफुल. नाउ स्टार्टेड ऑनलाइन. जैसे अब बस हो गया, कितना आंटी लोग से बेचेगा. ठीक है, अब अमेजोन पे भी बेचेंगे ना. टपरवेयर शट डाउन ना, बाय द वे, खत्म हो गया वो. प्लास्टिक प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ. समझ रहे? प्रोडक्ट यूजफुल लाइफ. प्रीफर पीपल आर प्लास्टिक नाउ. महंगा भी है टपरवेयर, इन जनरल महंगा है, प्लस प्लास्टिक है. पीपल डोंट वांट टू हैव, दैट्स व्हाई पीपल आर प्रेफरिंग स्टील, ग्लास कि सर रीयूजेबल भी है, उसमें केमिकल्स भी नहीं रहते हैं, इट्स बेटर फॉर द एनवायरमेंट. समझा? तो प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ बंद हो गया. फिर वो ऑनलाइन आया, टपरवेयर ने खुद के स्टोर्स भी डाले. प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, वो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना बेटा, देयर इज अ डिफरेंस. बिस्लरी इज सिंगल यूज प्लास्टिक. ठीक है, टपरवेयर वाज रीयूजेबल, देयर इज अ डिफरेंस. ऑलराइट, समझ में? दैट इज मार्केट डेवलपमेंट. नाउ लेट्स कम टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. कंफ्यूजन यहां से चालू होता है. प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्टिंग न्यू प्रोडक्ट लिखा हुआ है. सबसे पहले आई एम ट्राइंग टू सेल अ न्यू प्रोडक्ट इन अ existing market.
बट हमेशा ध्यान रखना है ये जो न्यू प्रोडक्ट है ना, नाउ व्हेन आई सेड एग्जिस्टिंग मार्केट आई मीन अ नोन मार्केट. Alright, when I know the market, I'm aware of the market, it is somewhere related to the existing products that I sell in the market. समझ में आ रहा है आपको? Okay, now for example, let's try to understand this with the help of an example. Okay, when I take Dettol. Alright, I take Dettol liquid and I try to sell the same liquid कि बेटा ये ले डेटॉल का डब्बा ले, तू गिर गया तो भी यूज कर लेना, मुंह धोना है तो भी यूज कर लेना, नहाने के टाइम पे भी यूज कर लेना, कपड़े धोने में भी यूज कर लेना. You are selling the existing product in the existing market, that is market penetration. I start selling Dettol online, I start selling Dettol in small stores, I start having small stores. That will be called as market development when I'm adding geographical channel. अब मैंने पंप लगा के स्प्रे, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सर है यस, बट एंड कंफ्यूजन में, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट, दिस इज वेरी मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट. कंफ्यूजन सर ये तो डेटॉल स्प्रे तो न्यू प्रोडक्ट हो गया. जो स्प्रे खरीद रहा है, तुम लोग का दिमाग ऐसा जाएगा, जो लोग स्प्रे खरीद रहा है वो तो नहीं खरीद रहा न्यू मार्केट. इसके लिए व्हेन आई से एग्जिस्टिंग इट मींस नोन. प्लीज टेल यू सेइंग एग्जिस्टिंग इट इज नोन. नाउ फॉर पिज्जा, ऑलराइट, नाउ अब मैं कोशिश कर रहा हूं मैं तुमको पास्ता भी बेचूं. नाउ इज इट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन? What it is somewhere existing, related मतलब खाने पीने. अब समझ में कंफ्यूजन कहाँ होगा? तुम इटालियन नहीं करना, पिज्जा पास्ता ना, दैट इज नॉट टीम, दैट इज नॉट ऑलराइट. सैमसंग फोन्स बराबर. This you got it right. Now coming back to sir, stop thinking like consumers. सर पिज्जा तो एकदम अलग है, पास्ता तो अलग रहता है, कैसा आप बोल सकते हो ये रिलेटेड है? बेटा वो फूड इंडस्ट्री में ही है ना, वो अपने कस्टमर्स को ही फोकस कर रहा है ना. वो तुमको आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब वो जैसे ऑलराइट वेज स्टिक्स देता है, जो स्टिक्स देता है वो सब क्या है? वो सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो थोड़ा चेंज करके, नाउ सी प्रोडक्ट इन वेरियस फॉर्म्स. योर बेसिक सबसे सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इज योर अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट जनरेशन एग्जिस्टिंग मार्केट, नोन मार्केट. एग्जिस्टिंग मतलब नो. सैमसंग इनको आईफोन 15 to 16 प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सैमसंग स्टिल रिलेटेड ना, वो स्टिल टेक्नोलॉजी. आर यू एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का बेस एंड नो केटर कर रहा है ना. ठीक है भाई, तू फोन नहीं खरीद रहा है, यू परचेज हेडफोन्स. इफ यू आर नॉट परचेजिंग द हेडफोन्स, यू परचेज समथिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्पीकर्स, हेडफोन्स, ब्लूटूथ हेडसेट्स, जो इट इज स्टिल ट्राइंग टू सेल इट टू द नोन मार्केट्स यार. एंड नोन मार्केट मतलब क्या? नोन मार्केट फॉर सैमसंग. मैं इलेक्ट्रिक मार्केट सैमसंग. ओके, कैन आई से आई कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स. नाउ टुमारो स्टार्ट कोचिंग फॉर सम अदर कोर्स. आई स्टार्ट विद ACCA. व्हाट इज इट? व्हाई नॉट डाइवर्सिफिकेशन?
स्टूडेंट्स को, बट मेरे लिए तो, और हाँ, तो ये बोला डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट थिंक एज कंज्यूमर्स, थिंक ऑफ इट एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो समझ में आएगा। द आंसर इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट इज नॉट डाइवर्सिफिकेशन, इट्स अ नोन मार्केट फॉर मी। सबसे पहले स्किल सेट विल सेट, इट इज अ नोन मार्केट फॉर मी। एग्जिस्टिंग मार्केट मतलब इट शुड बी नोन टू मी। पहले ध्यान से अपने आप को ये पूछने का, इज इट नोन टू मी, एम आई फेमिलियर विद द मार्केट? यस, बिकॉज आई एम केटरिंग स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट गिविंग देम different existing product. I used to give CA coaching, now I'm giving ACCA coaching tomorrow. So you that you are talking like consumer language requirements. That's why customers, मुझे तो crash course, fast track will be, crash back will be, all right. The territory is familiar. Tomorrow I do Mensa Vada Pav, where I don't know, I'm going into very unfamiliar territory. Fast food, airlines, all right. Mensa Airlines, where now Kingfisher alcohol and Kingfisher Airlines. सर एक मार्केट completely unknown for who the company are. You are not think from your, कितने लोग सर किंगफिशर में जो बियर खरीदता होगा और जो टिकट खरीदता होगा, तो एग्जिस्टिंग मार्केट एक वेंड कि सर पीपल बियर किंगफिशर्स फ्लाइट एंड पीपल हु डोंट टेक किंगफिशर्स फ्लाइट, एंड एक, so that's why you, the understanding has to be from company's point of view, boss. I am in electronics, I am in food items, I know the market, it seems familiar to me, it will be product development. Now it can be a modified product, it can be a next generation product, it can be an improved product, or it can be somewhere a completely new product which is existing or which is connected to the existing product. जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बोला था कॉमन थीम है टीवी, यस, सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो लोग उनको बेटर करना है, तो उन्होंने मोबाइल फोन्स कैटेगरी अलग रखी है, उससे हमारा में क्या डिफरेंस आता है? सैमसंग रिंग्स भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएगा। सैमसंग कल कोचिंग में घुस गया, कंप्लीटली अनरिलेटेड बेटा, जो कुछ अतरंगी होता है ना, फैनेटिक टाइप। अब देयर इज वन अमेरिका में, देयर इज यूएस में, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वर्जिन ग्रुप, ऑल राइट, म्यूजिक, वर्जिन ग्रुप म्यूजिक रिकॉर्ड्स, सोनी, इनकी एयरलाइंस भी है यूके में, हाँ यूके में, सॉरी, इनका टेलीकॉम भी है। तो आप समझ रहे हो फर्क? समझ में, तुम ये थोड़ी ना जो उसको दैट इज नॉट, दैट इज एग्जिस्टिंग मार्केट। व्हेन you have to come from and you have to say, see, I was now or I had a music studio, now I have into airlines. Market is anyway always existing, but for completely new market with a completely new product. See, that's why I said different skill and technology.
Samsung started as a trading company for वो पे and moved to electronics. तब understood? Diversification because completely new, completely unknown. समझ में आ रहा है? क्लियर? अब मैं तुमको 2-3 क्वेश्चंस पूछता हूं. डेयरी मिल्क सेलिब्रेशंस आता है. सेलिब्रेशंस ड्यूरिंग दिवाली या रक्षाबंधन उनका एक गिफ्ट पैक आता है. वो लोग वही प्रोडक्ट को थोड़ा फैंसी वैंसी बना के ट्रे में डाल के डब्बे में भेज देता है. तो क्या है? प्रोडक्ट या मार्केट पेनिट्रेशन है ना. आराम से आराम से. मार्केट पेनिट्रेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है आंसर? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. कैसे बताऊंगा ना बेटा, मेरा काम ही इसके लिए आता हूं मैं इधर. कैसे ना? मार्केट पेनिट्रेशन में देयर हैज टू बी नो चेंज इन द प्रोडक्ट. इट हैज टू गो एज इट इज. It's a technique. Pay attention. It has to go as it is existing. हाँ, see, dairy milk में 30% extra कर दिया. That is market penetration. But वो में 40% पे हाथ आएगा. मई में क्या? फेब्रुवरी नेक्स्ट मंथ ही है बेटा. मई में एग्जाम है. अच्छा, नेक्स्ट फेब में बनाएंगे सर. ठीक है. राकेश फेब क्या सोचा नहीं? मिलेगा ये रूनवाल में ही कहीं, अकेले ही जाना पड़ेगा. ऑल राइट. अरे ना वो कुछ भी फ्लेवर उससे कुछ लेना देना. नीट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नोट मार्केट को स्टूडेंट्स वाला तुम्हारा ग्रुप उनको देगा 14 फेब वाला स्पेशल डेयरी मिल्क विद हार्ट एंड मैसेज. बराबर है कि नहीं? झूठ मत बोलो. कोई ना कोई 70 में से कोई ऐसा लगता है तुमको नहीं खरीदेगा. ये मानता ही नहीं मैं. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज ऑल्सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नाउ Disney was what? Animation studio. Now Disney has a theme park also. Very unknown market. उसने use किया अपने characters, but it's a completely unknown market. That is diversification. Look, जब आपको skill लगेगा, where there is existing expertise, मेरा knowledge है ना वो use हो रहा है. All right? मेरा या knowledge use हो रहा है, वहां पे कंप्लीटली नया नॉलेज मुझे डेवलप करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया? चलो बोलो. किसी ने सर्वर कुछ बोला इधर? सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट क्या है? हाँ, किसका? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. बिटवीन मार्केट पेनिट्रेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. मार्केट पेनिट्रेशन में द प्रोडक्ट गोज एज इट इज. यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द यूजेज कि तू और ज्यादा यूज कर. ठीक है. अभी जैसे घी है 50% में 10% ज्यादा ही देते हैं एक्स्ट्रा, सो दैट दे आर होल्डिंग द. सी एकदम बेसिक है. मुझे एक बात बता, ऐसा समझाता हूं. 1 किलो घी कैन आई से 1 महीना चलता है ऑन एन एवरेज. 1 किलो घी और नहीं चलता है तो हम लोग चलाएगा इधर. ठीक है. तुमको 1 किलो घी 1 महीने में है खाने का है. अब वो 20% एक्स्ट्रा महीने से ज्यादा चलेगा कि नहीं?
बेसिकली इंक्रीजिंग द यूजेज. वो 20% के वजह से यू आर टाइड टू दैट कंपनी. यू अंडरस्टूड? वो 20% की वजह से यू आर टाइड टू द कंपनी. योर चांसेस ऑफ स्विचिंग टू समवन एल्स इज लेस. इट्स नॉट जीरो बट इट इज लेस. इसके लिए तुम देखो ना, एफएमसीजी इज ऑलवेज ऑन ऑफर. टूथपेस्ट 20% एक्स्ट्रा. ये सब कुछ बैक टू स्कूल के टाइम पे भी हाँ, स्केल, रबर, इरेजर, शार्पनर ये सब देगा. 2+1 स्मॉल टूथ फ्री या 30% एक्स्ट्रा. ये सब मार्केट पेनिट्रेशन है बॉस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब यू नो कॉम्पिटिटिव. दे हैव टू परचेज. Soap always 5+1 always. Detergent 4+1 कभी बिकॉज इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या तुम क्या डिफरेंशिएशन करेगा तुम डिटर्जेंट के अंदर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब गाड़ी जो नेक्स्ट जनरेशन का मॉडल आता है दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जैसे होंडा सिटी 2025 मॉडल आएगा या 2022 मॉडल है, तो एडवांसमेंट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो गया? प्लीज राइट दिस डाउन. बना लो ये. टेस्ला किधर आया? मतलब टेस्ला कंपनी का नाम है. मतलब क्या अरे मतलब टेस्ला का क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल. इलॉन के लिए तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ ना. उसने पेपैल से इधर तो न्यू मार्केट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल, तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन हुआ. फिर टेस्ला में आके उसने अलग अलग मॉडल्स लेके आए. दोज आर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अंडरस्टूड? फिर डाइवर्सिफिकेशन. हाँ बराबर. स्पेस एक्स का हाँ वायरलेस चार्जर मास प्रोडक्ट को थोड़ी ना बेच सकते, तो टाइम पास करते हैं. तो ऐसा तो टेस्ला का अल्कोहल पे आता है. हाँ हाँ कुछ नहीं. दे डोंट सेल. नो नो नो, दोज आर जस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स बेटा. जस्ट फॉर शो, टाइम पास. उसने तो फ्लेम वो बेचने मास प्रोडक्शन के लिए थोड़ी ना होता है. वो खाली मार्केटिंग टेक्निक्स होती. इलॉन मस्क ना यूएस का हर्षद मेहता जैसा, आप ये समझ लो. ट्वीट करता है, शेयर बाय ऊपर नीचे करता है, क्रिप्टो को ऊपर नीचे करता रहता है. उसका बस वही काम है. थोड़ा भी सटिया गया है वो. ठीक है. हाँ Elon Musk, Tesla actually was not founded by Elon Musk. Elon Musk took over a company which is already existing there, existing in the market. But you have to think from Elon's point of view. Then but he went to a completely different skill set. Na pehle he developed batteries, developed all other stuff, and then moved on to this, right? मिलता है टाइटन का कोई वो स्किन. प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंज्यूमेबल्स है ना बेटा. तुम समझो, ओरिजिन समझो.
जब समझो, जब टाटा, जमशेद जी टाटा था, ठीक है, ये लोग जब टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी, और क्या है, टाटा मोटर्स, ऑल राइट, ये सब डाइवर्सिफिकेशन है। टाटा जब एफएमसीजी में एक बार आ चुका है and now it is in operating in a known market, then it goes for product development. Are you understanding? अब जैसे आईटीसी है, आईटीसी क्या क्या बेचता है, गोल्ड फ्लेक, टोबैको, कौन है ये टोबैको, तुम लोग, शी, ऑल राइट, फियामेल्स, ये सब चीजें, ऑल राइट, होटल्स में भी है, करेक्ट, ये सब डाइवर्सिफिकेशन है बेटा, व्हेन द मार्केट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वन अनदर। बट व्हेन ही सेलिंग चश्मा, ठीक है, मैं बेसिकली कैसा है टाटा का, वो टाटा राकेश के पास जा रहा है, क्या टाटा चश्मा लेगा, राकेश बोलता है नहीं, अच्छा परफ्यूम ले ले, अच्छा परफ्यूम भी नहीं लेगा, एक काम कर मेरा टाटा मसाला ले ले, द रेंज, टाटा संपन्न, टाटा मसाले भी बेचता है बॉस, टाटा संपन्न, लाल मिर्ची वगैरह, अभी टाटा सॉल्ट, टाटा इज सेलिंग दैट, क्या बोलते हैं, दाल, दाल्स एंड योर पल्सेस एंड ऑल ऑफ दैट। सो बोलता है ठीक है राकेश, तू कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ना, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। टाइटन में है, अब टाइटन है, फास्ट ट्रैक है, तो क्या डाइवर्सिफिकेशन हो गया, तुम बोलेगा जो फास्ट ट्रैक खरीदता है नहीं खरीदेगा, जो टाइटन है वो फास्ट ट्रैक नहीं खरीदेगा। अगेन स्टॉप थिंकिंग फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इफ आई एम इन टाइटन, ठीक है, मैंने वॉचेस बनाना चालू करी काफी टाइम से, जब वॉच में पहली बार गया हूंगा ना बेटा, फर्स्ट टाइम, at that time it would have been somewhere diversification when I'm going in a completely different market, but from Titan watch when I came to fast track, it is product development only, कि मैं एक चीपर वर्जन बना रहा हूं फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स या यंग स्कूल चिल्ड्रन, जो सस्ते सस्ते में वॉच खरीद सके। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। तुमको ये नहीं देख, तुम्हारे लिए वो कंप्लीटली डिफरेंट है कि सर परफ्यूम को और चश्मे वाले कैसा कंपेयर कर सकते हो, कि सर परफ्यूम तो अलग प्रोडक्ट है, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग टाटा इज सेलिंग द सेम मार्केट ना, वो ये है, कोई परफ्यूम खरीद रहा है तो कोई चश्मा खरीद रहा है, या तो कोई और वॉच खरीद रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्लियर हुआ, ठीक है, ये भी लिख लो। Quantity is that extra and product is finding alternate use, यही similar application for current users. This and this mean the same, huh? ये and ये, second and third, second and last. बस फिर इसके बाद एक चैप्टर एंड देन आवर जर्नी इज ओवर, हो गया ना फटफट।
डन बेटा.